کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ ترکھان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم دشمن تھی، وہ میلے میں چلے گئے سارے، کوئی میلہ ہوگا نا، انہیں موقع ملا، وہ گئے بت خانے میں جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال، ان سے کن دے کے کلاڑا رکھ کر آ گئے۔ وہ ملنے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے، تو سارے خدا لنگنے، للے، اندھے، کانے، بڑا اشتعال پھیلا۔ کس نے کی ہے یہ توہین؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے قریب نہیں آیا کرتا، ان کے گلے کرتا رہتا ہے، یہ ہونا اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے، کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبودوں کی بازو توڑ دی ہے، ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہی ان کی برائی کیا کرتا اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہیں۔ وہ کلاڑا سے بڑے بت کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا، فرمایا وہ چور پکڑ لیا، پکڑا گیا۔ لوگ کیسے؟ دیکھو نا کلاڑا اس کے پاس ہے نا، اسی نے لگا چڑھایا سار ہو تو کا تختہ اس نے نکالا ہے، ثبوت کیا کلاڑا اس کے پاس ہے، اسی نے سب کا تختہ نکالا ہے، پوچھو اس سے۔ کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے، لگا پھر میں نے بے عقلی کی بات، انہوں نے کہا یہ کبھی بولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا۔ لگا پتھر کا ہے یہ بولنے گا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے، ان سے پوچھو نا جن کے سر پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کان کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو۔ پھر وہی بات کرتا ہے ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں، نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے۔ لگا اچھا اپنی ٹانگ تڑوائی ہوئی تو بتا نہیں سکتے، تمہیں دیکھ کے دے سکتے۔ فما قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله
اور ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے، ویسے ہمارے خدا ہے۔ فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا ينصروا آلهتكم، کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جناب اس ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑو۔ چکھا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا اور کولے چھولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیوارسا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا تھا میرا حال اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے، کہا پھر جا رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اور آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ اگر تو سارا علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے، مصر کے علاقے سے گزرنے لگی۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں بندہ بدماش بنانے، جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے، واقعی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ان کا خبر تلو ہوا کہ چوری بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، اور جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچے خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے، دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ نے کہا واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارا رونے لگی، خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے چلے، کہنے لگے اوزار میں نہ پھیرو، نہ خلیل کی آبرو اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بتانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے،
नमाज पढ़े और अल्लाह से मुनाजात करे और मेरे मालिक मेरी इज्जत का निगाहबान तू है और कोई नहीं। सारा अलैहिस्सलाम ने जो जिंदगी तो मांगी, बादशाह वक्त के बदन में दर्द होने लगा, वो तरफ होने लगा। तो वो कहने लगा तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तौबा करता हूँ। पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है, ये लोग बड़े रहीम हुआ कर। अंदाजा ला, अभी पकड़ के लाए, अभी बुराई का इरादा कर रहा था, हज़रत सारा ने फिर झोली फैला दी और मेरे मालिक ये तौबा करता है तो इसे माफ कर दे, तू इसे माफ कर दे। अब वो अपनी से कब बाज आने वाला था, फिर इरादा किया बुराई का। हज़रत सारा ने फिर नियत बांधी, 3 मरतबा ऐसा ही हुआ है। बादशाह वक्त हज़रत सारा की इज्जत पे आसाफ करना चाहता है। बादशाह का मतलब है आबरू को बर्बाद करूंगा। खुदावंद करीम की सरज़ुगायत ये है, खली जाओ सारा को इस बादशाह के मकान में भेज दे। यहाँ पर एक छोटी सी कलीज है, एक मासूम बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम हाजरा है। लोग उसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके काली कमली वाले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और बुनियाद डालना चाहता हूँ। वो हज़रत सारा की इज्जत लूटना चाहता है। अल्लाह पाक हज़रत हाजरा की इज्जत बचाना चाहते हैं। अभी तो छोटी सी बच्ची है, अभी इसे ले आओ, किसी गैर का हाथ न पड़े। खुदा की कसम, नबी तो नबी, नबी की माँ की इज्जत में खुदा उसकी हिफाजत करता है। सुन लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, याद करो इस बात को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर फरमाते हैं मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह तक, बीच में जितने भी वास्ते मर्दों के आए हैं और हज़रत हव्वा से लेकर हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक बीच में जितने भी औरतों के वास्ते आए हैं, हुजूर फरमाते हैं कभी किसी के दिल में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ। फरमाया मैं पाकीज़ा नस्ल से हूँ। पाकीज़ा नस्ल का सिर्फ ये मतलब भी नहीं कि वो जिना नहीं करते थे, फरमाया उन नस्लों में, उन पुश्तों में से मेरा नूरे नबूवत मुंतकिल होकर आया जहाँ जिना का कभी इरादा भी नहीं हुआ। उनका जानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर की खबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है, ये तो यूं ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। हज़रत हाजरा के बारे में बादशाह वक्त कहने लगा, अपने साथ इस बच्ची को ले जा, चल तेरी खिदमत किया करेगी और मेरे मुल्क से जल्दी बाहर निकल जा, तो नहीं तू तो कोई बला है। उलमा इकराम ने लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो थी, मगर खुदा बंद करीम भी अपने हुक्म से दिखाता रहा कि कल को तुम अपनी बीवी से मुस्तबे न हो जाना। अब सवाल ये कि कैसे दिखाया, आज के टेलीविजन ने ये मुहिम्मा भी हल कर दिया। अगर अंग्रेज की बनाई हुई चीज को तुम अमेरिका से यहाँ देख सकते हो, तो क्या हज़रत सारा चीज आबरू का मामला और नमाज का मामला बाहर बैठे हुए आदमी को खुदा नहीं दिखा सकता? वापस आई तो एक बड़ी खूबसूरत बच्ची साथ है। फरमाया ये क्या कि खादमा मिली अल्लाह ने दी। तो मिस्र से निकले, दूसरे मुल्कों का सफर तय हो रहा है, खानदान नहीं, कबीला नहीं, और लोगों अगर मुआहिद बनना का इरादा हो, अगर तौहीद परस्त बनना हो, अल्लाह वाला बनना हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। घर से निकले, वतन से निकले, बाहर आए, दूसरे मुल्क में पहुंचे तो आबरू के लाले पड़ गए। कदम कदम पे परेशानी है, आग में जलना पड़ा, इज्जत पे हरफ आया, सब कुछ हुआ, मगर खलील ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं छोड़ा। खुदावंद करीम ने हज़रत हाजरा के साथ अल्लाह का हुक्म था, निकाह हो गया, जवान हो गई तो पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब ये बात कहने की नहीं,
जिस बच्चे की नस्ल में से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ला रहे हो, उसकी पेशानी में क्या नूरे नबूवत न चमकता होगा, उसके हुस्न जमाल का क्या कहना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा प्यार आया, अकलौता बेटा, खूबसूरत बच्चा, हज़रत हाजरा का लक्के जिगर, नूरे नजर, मोहब्बत करने लगे अपने बच्चे से, सुबह शाम प्यार करते, सीने से लगाते। बस अल्लाह मियां ने फरमाया, खलील मालूम होता है तेरे दिल में मेरे सिवा कोई और भी बच गया। लेकिन नहीं मेरे मालिक। फरमाया नहीं नहीं, तुम मिले मुझ पे मरा करते थे, अब बच्चे को भी उठा करके प्यार करते हो। पैगंबर की बात है मेरी तेरी नहीं। कभी हम भी अपने बच्चों को थप्पड़ मारने लगे। मालिक नहीं, मैं तेरा हूं, मेरा अंग अंग तेरा है। और मैं अच्छा, फिर इस हाजरा को ले चलो और इस मासूम बच्चे को ले चलो, और जहां हम बताएं वहां छोड़ कर चले आओ, इंसानियत हो जाओ। इन्हें बताना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, हजरत हाजरा साथ चल रही है। खुदा की कसम, क्या मंजर होगा जब हजरत हाजरा अपने लक्ष्य जिगर को सीने से लगाए हुए इब्राहिम खलीलुल्लाह के पीछे पीछे चल रही है। आ गया एक मैदान है, तो अमीर में कोई आबादी नहीं, दरख्त नहीं, चश्मा नहीं, बाग नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, आदमी नहीं, राह गुजर नहीं, कुछ भी तो नहीं। इशारा करके फरमाया यहाँ बैठ जाओ। अरे हाजरा बैठ गई, बगैर बताए चल पड़े। समझी किसी जरूरत के लिए जा रहे हैं। जब दूर निकल गए आवाज दी, ए इब्राहिम कहाँ चले? मुड़ के नहीं देखा। पता चला कि अल्लाह का जो पैगंबर होता है, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो तो मुड़ के भी नहीं देखता। अरे हम तो दूसरों की औरतें देखने से नहीं हटते, अल्लाह का पैगंबर तो अपनी को भी नहीं देखता खुदा के अमर के बगैर। और इब्राहिम कहाँ चले? फिर के नहीं देखते। समझ गई ये तो जा रहे हैं। बच्चे को सीने से लगा, दौड़ लगाई, रास्ता करके रोक लिया और कहने लगे, इब्राहिम कहाँ चले? मैं जवान औरत हूँ, मुझे किसके हवाले कर रहे हो? यहाँ आदमी नहीं, परिंदा नहीं, ये मासूम बच्चा मेरी गोदी में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल कर नहीं फरमाते, मेरे अल्लाह का हुक्म है, इजाजत। देखा तुमने अल्लाह मियाँ का पैगंबर, अल्लाह मियाँ का कितना पाबंद होता है। खुद अपनी बीवी से, खुद अपनी घरवाली से जुबानी कलाम नहीं करता, चुप साथे खड़े हैं। अगर से हाजरा कहती है, ओ इब्राहिम मेरा कसूर बताओ, मैं माफी मांगूंगी, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मैं माजरत करूंगी, मैं माफी चाहूंगी। मेरी खता बताओ, मेरा कसूर क्या है और इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जिसको जंगल में छोड़ के जा रहे हो? अंदाजा लगाओ, हजरत हाजरा लजाजत कर रही है, रो रो करके पूछ रही है। अल्लाह का पैगंबर बिल्कुल खामोश है। सोचती है ये तो नबी है, पैगंबर है, जुल्म नहीं किया करते, किसी को तंग नहीं किया करते। हुआ क्या? सोच के कहने लगे, इब्राहिम कहीं उस मालिकुल मुल्क का यूं हुक्म तो नहीं, उस रब का हुक्म तो नहीं। तो मेरी तरफ देखना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना हिलाया, यूं थोड़ा सा सर का इशारा किया। हाँ औरत जात है, लिपट जाती, मैं क्या जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? मगर वाह हाजरा तेरा ईमान, वाह हाजरा तेरे यकीन पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे ईमान पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे तवक्कुल पे कुर्बान हो जाऊं।
तेरे एतमाद पर कुर्बान हो जाऊं, औरत जात होते हुए। और एक और तमाशा देखो जरा, समझो, जहां अब खड़ी है ना, यही बैठ जाती नहीं, जहां पहले बिठा के आए थे कदमों के निशान देखती हुई वहां जा बैठी और दौड़ दी, कहने लगी इब्राहिम जाओ, फिर खुदा हाफिज है, फिर मैं जानू और वो जाने। ये भी तो नहीं कहा कि चलो मैं बैठूंगी, अपनी आल को तो ले जाओ, इससे मैं क्या करूंगी, ये भी नहीं, जा बैठी, अल्लाह का नाम ले रही है। आज की औरत तो नमाज नहीं पढ़ती, आज की औरत तो कुरान मजीद की इजाजत नहीं करती, आज की औरत को सोते वक्त इस्तग़फ़ार की तौफीक नहीं, आज की औरत को सोते वक्त दुरूद पाक पढ़ने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तौफीक नहीं। हज़रत हाजरा रात दिन अल्लाह अल्लाह करती हैं, दो चार दाने खजूर के खा लेती हैं, थोड़ा सा पानी पी लेती हैं, अकेली है, दिन जाते हैं, रात आती है, रात खत्म हो जाती है, दिन आ जाता है, कई दिन गुजर गए, आदमी तो क्या परिंदा लगा दिया, बिलाखिर वो खजूरें खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गया, अब तो चल पड़ती नहीं, बैठी है, छातियों से दूध उतरना बंद हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालत इतनी बिगड़ी, भूख की वजह से इतनी जुबान बाहर निकल आई। खुदा की कसम, हज़रत हाजरा तेरी हथेलियों पे क्या बीती होगी जब तुमने अपने लख्ते जिगर को जुबान निकालने देखा, जब भूख और प्यास की वजह से दिल गिरा रहे हैं, तड़प रहा है बच्चा और माँ सीने से लगाए हुए अल्लाह का नाम ले रही और बैठी। जब ना देख सकी, दो पत्थर खड़े किए, एक ऊपर रखा छाई, उसमें लिटा दिया। हज़रत हाजरा सोच रही है क्या बनेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म पूरा कर दिया। उधर मालिक की कायनात फरमाते हैं, कोई अपना घर बनवाएगा, छतर बुनियाद रखेगा, कोई वजीर आजम से बुनियाद रखवाएगा, कोई अफसरों से बुनियाद रखवाएगा। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं बैतुल्लाह की संग बुनियाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजों की एड़ियों से रखवाना चाहता हूँ। हज़रत हाजरा अपने बच्चे को लिटाकर, दो पहाड़ियां हैं करीब करीब, अय्यूब अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ बीमारी के अंदर। अपने जमाने के बादशाह है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अमीर कबीर आदमी है और अल्लाह के पाक पैगंबर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली हजरत रहमत अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी पोती है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की तो शैतान को तकलीफ हुई। अब आगा ये मेरा अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा है, मेरी बड़ी तारीफ करता है, मेरी बड़ी हम्दो सना करता है, बड़ा तराना रेज रहता है, हर वक्त मेरे सामने दामन फैलाता है, आजिज़ी करता रहता है, मुझसे मांगता रहता है। शैतान ने आवाज दी, उसे क्या तकलीफ है, वो तेरा शुक्र अदा क्यों ना करे, कमी जो किसी बात की नहीं, सब कुछ जो तूने उसको दे रखा है वो तुझे याद ना करे तो और क्या करे। मजा तो तब है कुछ भी ना रहे, फिर देखूं कैसे याद करता है। अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमा दिया, और शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, मेरी बंदगी करता है, मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, मेरे हुक्म की तामील करता है, तुझे इस पर क्या तकलीफ है, वो हरगिज़ मेरे नाम को नहीं छोड़ सकता।
शैतान कहने लगा इतनी औलाद है, इतनी खूबसूरत बीवी है, खुद बड़ा हसीन है, मालदार है, इसे कमी क्या है? तो यूं लिखा उलमाए किराम ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में इजाजत मांगी, ए अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी कुछ कार्रवाई करूं, फिर देखूं अय्यूब अलैहिस्सलाम तुझे कैसे याद करता है। फरमाया जहां हमने तुझे इजाजत दे दी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सजदे की जगह जाके बैठ गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदा फरमाया, दोनों नाकों में आग की फूंक मार दी, सारा बदन गल गया। अल्लाहु अकबर। पहले खुद जबरदस्त तकलीफ में मुब्तला हो गए, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकाम सबका इम्तिहान हो रहा है। अपने ऊपर झेलना बड़ा आसान है, बच्चों को तकलीफ में देखना बड़ा मुश्किल बात है। अपनी आल को, अपनी औलाद, अपना लख्त जिगर, अपना नूरे नजर कौन देख सकता है? कितना ही बड़ा गुनाहगार हो माँ बाप फिर भी तकलीफ में नहीं देख सकते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को निहायत तकलीफ हुई, सारा खानदान खत्म हो गया, एक बीवी बची, एक। बीमारी तवील होती चली गई, परेशानी के दिन बढ़ते चले गए, सारा बदन गल गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगोकर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिन को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का माही सफर करके जाती है, आगे से औरतें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली के हाथों में छाले पड़ गए, लोगों के पानी के मशकीजे और घड़े उठा उठा कर कंधे का चमड़ा उधड़ गया। इस परेशानी के आलम में आती है, जाती है, गुजारा करती है। बस्ती वालों ने कहा, सारी बस्ती में कोड़ फैलाओगे, इसे उठा यहां से मार ले जाओ, उठा के कहीं जंगल में मारेगी सारी बस्ती को। पता चला कि ये जो लोगों में एक बात फैली हुई है कि मरज दूसरे को लग जाता है, ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मरज मुझे लग जाएगा, मेरा मरज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। अल्लाहु अकबर। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम गवात लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। नई बात नहीं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आने सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी माँ के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर इस कदर बदअमनी क्यों है, बेबरकती क्यों है, रहमत नहीं, सुकून नहीं, तमाम चीजें खत्म होगी क्यों है? और जब हमारी खुराक
सूद हो गई, हराम हो गया, बीवी बच्चों को हम हराम खिलाते हैं, फिर सुकून कहां से आया? और उसे हराम नहीं समझते। अब एक बात मेरे जहन में आ रही है, तुम्हें बुरी लगेगी। ये लिखे पढ़े लोग कहते हैं कि जी देखो, मकान का किराया उलमा कहते हैं जायज है, दुकान का किराया खाना जायज है, प्लाट का किराया खाना जायज है, जमीन का किराया खाना जायज है, घोड़े पे किराया कमाओ खाना जायज, ऊंट पे भाड़ा किराया कमाओ जायज, लारी पे किराया कमा के खाओ, कार टैक्सी हवाई जहाज में कमा के खाओ जायज। इतनी बात करके फिर मुंह बनाते हैं, कहते हैं देखो ना जी, जब हर चीज का किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया खाना गुनाह क्यों है? एक आदमी 100 रुपए किसी को देता है, वो ये कहता है कि जी 110 लूंगा अगले महीने में। वो कहते क्यों गुनाह है? हर चीज का जब किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया क्यों ना जायज है? अब लंबे चौड़े मसले अगर करूंगा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे जहन में फौरन आ जाएगी इंशाअल्लाह। भाई गधे का किराया, घोड़े का किराया, ऊंट का किराया, टैक्सी का किराया, दुकान का किराया, मकान का किराया खाना जायज है, बीवी का किराया खाना जायज क्यों नहीं? कोई गैरतमंद आदमी ये पसंद नहीं करता कि बेटी का भाड़ा खाना जायज क्यों नहीं? अगर तेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि तेरी बीवी का किराया देकर उसके साथ कोई बदकारी करे, तो खुदा की ये गैरत गवारा नहीं करती कि माल मैंने दिया और फिर तू पैसे का माल को माल बिल माल को क्यों कमाता है तू? ज़हन बदल गए लोगों के। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बस्ती के लोगों ने हजरत रहमत को परेशान कर दिया। उठा यहां से, चल बाहर लेके चल, कोड़ी को ले जा यहां से। उन्हें क्या पता था कि ये पैगंबर है? उन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह का नबी है? और पता होते हुए भी कौन से लोग माफ करते हैं? कुरान करीम का तज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में आए जिन्होंने नबियों को कत्ल कर डाला। हज़रत रहमत को मजबूर कर दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को, चल चल उठा, कोड़ी को उठा के ले जा, सारी बस्ती का बेड़ा गर्क न कर ले जा। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, हज़रत रहमत भी रो रही है, कैसे उठाऊं? सारे बदल पे उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। सर से लेकर पैरों तक तमाम बदन गला हुआ है और फिर भी जख्मी जुबान हर वक्त अल्लाह को याद करती है। उलमा किराम ने लिखा है कि हजरत रहमत रो रही थी, तो अल्लाह के फरिश्तों ने आकर के कहा क्यों रो रही, क्या बात है? कि ये लोग तंग कर रहे हैं, उठा के ले जा। मैं कैसे उठाऊं, मेरे से उठाया नहीं जाता। फरमाया आज तुम भी ये लिख याद करके ले जाओ, पीरों के वजीफों पे तुम्हारा यकीन है, कारी हनीफ के वजीफे पे थोड़ा यकीन आएगा। फरिश्तों ने बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के उठा सकेगी। हजरत रहमत के दिल में थोड़ा सा यकीन आया, फिर फिजला ढीली थी। वो फरिश्ते कहने लगे अल्लाह का अर्शे अजीम, अल्लाह का अर्शे अजीम। फरिश्ते उठाने लगे तो नहीं उठा सकते थे, आवाज आई वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। जब उन्होंने ये पढ़ा तो अर्शे अजीम उठा लिया। तो हजरत रहमत ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा तो उठा लिया, क्योंकि अवाम में ये ला हौला वला कुव्वता जब पढ़ा जाता है, जब कोई बुरी गल हो, ओ यार रहने दे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो कहते हैं ये कोई तस्बीह हो रही है। हालांकि ये अर्शे अजीम उठाकर जो कंधों पे फरिश्ते खड़े हुए हैं, ये उनकी तस्बीह है।
हजरत रहमत ने उठा लिया और बाहर जंगल में ला के रख लिया। कानने लाई कहीं से ढूंढ कर झोपड़ा सा बनाया और झोपड़ा सा बनाकर फिर एक टट्टी सी बनाकर दरवाजे में लगाती थी। फिर मजदूरी पे निकल जाया करती थी, दूरों नजदीक सारा दिन धक्के खा खा के आती है। उधर शैतान मरदूद हजरत रहमत के साथ साथ फिरता है, जिधर जाती है वहीं से धक्के दिलवा देता है। अल्लाह यूं सुना कि हजरत रहमत आटा जब पीस रही होती थी, जब ये जाकर के चुगली खाता कि तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा आटा पीसने वाली औरत है इसका खामिन कोड़ी है, बर्बाद हो जाओगे। यूं लिखा है मुफस्सिरीन ने, हजरत रहमत को अपनी चक्की पे से उठाकर दूर तक धक्के देकर वापस निकाल दिया करते थे। पैगंबर की घरवाली रोती हुई आ जाया करती थी, फाकों पे फाके काटे। और एक और मेरी बात सुन लो, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये धक्के खाने वाली जिसके कंधे का चमड़ा उधड़ गया, जिसके हाथों में छाले पड़ गए, उलमा ने लिखा है। दोस्तों अगर आप हजरात को हमारा ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हाफिज शान रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।